Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shoaib Ahmed and to be a medical student in University of Management and Technology. Today the topic of my presentation is about automation. First of all, what is automation? Automation is a technique of making an apparatus or a process or a system which operates automatically. It is also defined as the creation of application of technology to monitor and control the production of the delivery of products and services is called automation. Why automation is needed? Automation is a very important need for the processing of different samplings and producing results, because it involves minimum amount of people involved in the automatic process and give maximum output of results, and it use very minimum amount of time. Automation is also important because it produces correct and reliable results which are 100% accurate. Automation is also important because the chances of error is very minimum in the automatic process. उसके बाद आ जाता है कि टर्न अराउंड टाइम इन ऑटोमेशन. टर्न अराउंड टाइम इज़ अ टाइम टेकन टू produce any result is called turnaround time. Total turnaround time भी होता है. Total turnaround is the time taken from the sample collection to the clinician receiving report is called total turnaround time. Within laboratory, turnaround time is a time between sample receipt in our laboratory to production of the result is called turnaround time. Every laboratory clinical laboratory will have one immunochemistry analyzer and one general chemistry analyzer. उसके बाद आ जाता है कि what is immunochemistry analyzer? Immunochemistry analyzer is also known as immunoassays. It is the most sensitive method where there is a low concentration of analyte in the test material. Immunochemistry analyzer is used because it performs at very low concentration of the analyte. It performs the results. Immunochemistry analyzer is also known as immunoassays, and immunochemistry analyzer are the instruments that automatically run the test in the sample from patients to detect any biological active substances in the giving sample. There are several ways that immunochemistry analyzer can detect the molecules such as antigen antibody binding, and the ligand receptor interactions. Uses of immunochemistry analyzer. Immunochemistry analyzer are used in hormones detection, drugs and vitamins detection. ठीक है. हार्मोन्स में जैसा कि थायरॉक्सिन आ जाता है, कार्टिसोल आ जाता है, विटामिन में आ जाते हैं, विटामिन B12 आ जाता है, फोलेट हो जाता है, और ड्रग्स में आ जाता है कि फिनोइट्रिन एंड थियोफाइलिन. These are the important drugs, hormones and vitamins which are detected by immunochemistry analyzer. उसके बाद जो है वो immunochemistry analyzer जो है वो 3 तरह के होते हैं. ठीक है. डिस्क्रीट एनालाइजर होते हैं, डिस्क्रिशनरी एनालाइजर होते हैं, और रैंडम एक्सेस एनालाइजर होते हैं. सबसे पहले आ जाता है कि discretionary analyzer can perform one or more of the assays from those available samples and determined by the operator. इसमें discretionary analyzer में जो है वो एक या एक से ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, और हम जो भी हमें टेस्ट जो है वो रिक्वायर होता है जिसका रिज़ल्ट हम उसको जो है वो सिस्टम को कमांड देते हैं, ऑपरेटर कमांड देता है, और जो है उसका रिज़ल्ट जो है वो पहले जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है. उसके बाद जो है इसमें आ जाते हैं डिस्क्रीट एनालाइजर. डिस्क्रीट एनालाइजर में जो है वो सैंपल जो है वो इंडिविजुअल वेसल जो है सिंगल जो है वो रिज़ल्ट जो आता है. इसमें जो है हम प्रॉपर वे में एक जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो टेस्ट उसका रिज़ल्ट जो है वो हम कलेक्ट नहीं कर सकते. डिस्क्रीट एनालाइज़र है, इसमें सारे टेस्ट जो हैं एक ही बार जो है वो परफॉर्म होंगे और इनके रिज़ल्ट एक ही बार आएंगे. उसके बाद आ जाता है random access analyzer. Is random access analyzer are those able to undertake an analysis independent of the position of the specimen in the sample queue. इसमें जो है हम सिस्टम को कमांड देते हैं, और जो टेस्ट हमें अर्जेंटली बेसिस पे रिक्वायर होता है उसका जो है वो आउटपुट जो है वो रैंडमली हम उसका कलेक्ट कर लेते हैं. उसके बाद आता है कि जनरल ऑटोमेटेड केमिस्ट्री एनालाइजर्स क्या होते हैं. व्हाट इज़ जनरल ऑटोमेटेड केमिस्ट्री एनालाइजर? द सीरीज ऑफ इवेंट्स नेसेसरी टू इनिशिएट एंड मॉनिटर डिफाइंड रिएक्शन विच अलाउज द क्वांटिटेटिव और occasionally qualitative determination of analyte of interest.
इसमें जो है वो दो तरह के होते हैं जनरल केमिस्ट्री एनालाइजर्स, जिसमें एक होता है कि स्मॉल बेंच टॉप डिवाइसेस होती हैं और दूसरे जो है वो फ्लोर स्टैंडिंग डिवाइसेस होते हैं। जो स्मॉल टॉप बेंच डिवाइसेस होती हैं जो है ये 100 टेस्ट पर हार जो है परफॉर्म कर सकते हैं। इनकी जो है वो परफॉर्मिंग कैपेसिटी कम होती है। स्मॉल बेंच टॉप डिवाइसेस विद द कैपेसिटी टू अंडरटेक अ फ्यू 100 टेस्ट पर हार and the large floor standing high throughput instruments with the capacity to undertake several thousand tests hourly। ये एक घंटे में हज़ारों से ज़्यादा जो हैं वो टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि फ्लोर स्टैंडिंग लार्ज डिवाइसेस होती हैं। और जो है स्मॉल बेंच टॉप सिस्टम है उसकी एग्जांपल है दी ABX पेंट्रा 400। और जो हाई कैपेसिटी एनालाइजर होता है फ्लोर स्टैंडिंग वो है दी ओलंपस AU 5400। उसके बाद आ जाता है कि हम कौन कौन से जो है वो टेस्ट प्रोफाइल्स कौन सी हैं जो कि हम जनरल केमिस्ट्री एनालाइजर और इम्यूनो केमिस्ट्री एनालाइजर में परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है टेस्ट प्रोफाइल में आता है रीनल प्रोफाइल। रीनल प्रोफाइल जो है ये रिलेटेड टू किडनी होता है। इसमें जो हम क्रिएटिनिन जो है उसको जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। यूरिया को, सोडियम को, पोटाशियम को, क्रिएटिनिन क्लियरेंस को हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है BUN इसको भी हम चेक करते हैं, यूरिया नाइट्रोजन। उसके बाद आ जाता है कि लीवर प्रोफाइल। लीवर प्रोफाइल जो है ये लीवर के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। इसमें जो है हम एलानाइन अमाइनो ट्रांसफरेज ALT, उसके बाद एस्पर्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज AST, उसके बाद अल्कलाइन फास्फाटेज ALP, इन एक्टिविटीज़ को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम एल्ब्यूमिन और बिलीरुबिन को जो है वो इम्पोर्टेंटली इसमें जो है वो हम चेक करते हैं। उसके बाद जैसे कि लिपर प्रोफाइल टेस्ट, ठीक है। इसमें जो है हम टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स चेक करते हैं और ग्लाइसरोल्स जो है वो चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम इनका जो है मेंटेनेंस स्केड्यूल चेक करते हैं। इम्यूनो केमिस्ट्री एनालाइजर को कब जो है मेंटेन किस तरह करना है, कौन कौन सी जो चीज़ें रिक्वायर हैं। इसमें जो की कंपोनेंट्स इम्पॉर्टेंट फॉर क्लीनिंग एनी इम्यूनो केमिस्ट्री एनालाइजर्स आर देयर। सैम्पल प्रोब्स जो है वो डेली मेंटेनेंस होती है, सैम्पल प्रोब्स डेली मेंटेनेंस होती है, वीकली मेंटेनेंस होती है, मंथली प्रोसीजर होते हैं विच में बी लेस फ्रीक्वेंटली नीडेड हाउस कीपिंग टास्क, ठीक है। उसके बाद 6 मंथली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है और 1 ईयर जो है वो मेंटेनेंस होती है, आफ्टर 1 ईयर मेंटेनेंस। उसके बाद आ जाता है कि स्पेसिमेन प्रेजेंटेशन। स्पेसिमेन प्रेजेंटेशन में जो है कि हम कौन कौन सा जो है स्पेसिमेन जो है वो इम्यूनो केमिस्ट्री एनालाइजर, जनरल केमिस्ट्री एनालाइजर में जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले होता है कि इन दी फार्म ऑफ सीरम या प्लाज्मा या सीरम की फार्म में कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो यूरिन टेस्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा सेरिब्रोस्पाइनस CSF फ्लूइड जो है उसको भी हम चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो एस्पायरेट्स होते हैं उनको भी हम चेक कर सकते हैं और रिफ्यूजन होती हैं। स्पेसिमेन ट्यूब्स प्रेजेंटेड टू एनालाइजर इन द फॉर्म ऑफ रैक्स, रोटर्स, सेगमेंटेड रोटर्स और थ्रू एन ऑटोमेटेड ट्रैकिंग सिस्टम। इनके ज़रिए जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी एनालाइजर को स्पेसिमेन, ठीक है। उसके बाद जो है वो सैंपल आइडेंटिफिकेशन किस तरह होती है। आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है हम बार कोड यूज़ करते हैं, यूजिंग अ बार कोड टू ईच ट्यूब टू आइडेंटिफाई द यूनिक लेबॉरेटरी नंबर एलोकेटेड टू द स्पेसिमेन। Quality of the barcode and its correct positioning on the specimen tube are critical for efficient processing. If the quality or alignment are compromised, quality control and calibration materials must also be presented to the analyzer using a separate dedicated rack or rotor. Can be presented in a tube that has a barcode। और जो इससे सैम्पल्स होते हैं इनको जो है वो हम ऐसी ट्यूब में प्रेजेंट करते हैं जिस पे जो है बारकोड्स होते हैं जो कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैलिबर को, उसके कैलिब्रेटर को या क्वालिटी कंट्रोल को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद जो है वो स्टैट फैसिलिटी होती है, ठीक है, एनालाइजर्स में, जिसके ज़रिए जो है वो हम जो अर्जेंट और प्रायोरिटी प्रोसेस भी करते हैं कि कौन सा सैंपल जो है हमें सैंपल का रिज़ल्ट अर्जेंट बेसिस पे चाहिए। उसके लिए हम स्टैट फैसिलिटी यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए जो है वो हम उसको कमांड देते हैं उस सैंपल के लिए और उसका हमें जो है सबसे पहले जो है वो टेस्ट जो है उसका रिज़ल्ट हमें मिल जाता है। एंड दिस में बी डेडिकेटेड रोटर और रैक पोजीशन में जो है वो ये स्टैट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड होती है।
अवेलेबल होती है और उसमें जो है हम उसको सिर्फ मेंशन करते हैं और उसका जो है अर्जेंटली बेसिस पे टेस्ट जो है वो परफॉर्म होकर रिज़ल्ट आ जाता है। उसके बाद जो है कि सैम्पलिंग पाइपटिंग किस तरह करनी है, ठीक है। रिक्वायर अ मैकेनिज्म टू ट्रांसफ़र अ डिफाइंड वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन फ्राम द सैम्पल ट्यूब इनटू द रिएक्शन वेसल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसमें जो है हम सैम्पल पाइपटिंग में ये कहते हैं कि जो हमारा सैम्पल होता है उसका वॉल्यूम जो है वो स्पेसिमेन का वो सैम्पल ट्यूब में उतना भेजते हैं कि वो आगे जाके रिएक्शन जो वेसल होती है इंस्ट्रूमेंट की उसके साथ जाके रिएक्ट कर सके, जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पेसिमेन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग अ टेस्ट इन द केमिस्ट्री एनालाइजर जेनेरिक ऑटोमेटिक एनालाइजर, वो हम जो है उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि जो है वो रिएक्शन वेसल के साथ इंस्ट्रूमेंट जो रिएक्शन वेसल होता है उसके साथ जो है मिलके टेस्ट परफॉर्म कर सके। उसके बाद के मैकेनिज़्म जो हैं इनमें जो है दो टाइप्स के जो है वो सैम्पल प्रोब होते हैं, ठीक है। एक डिस्पोजेबल टिप होती है और एक फिक्स प्रोब होता है। डिस्पोजेबल टिप जो है वो हर इंडिविजुअल स्पेसिमेन के लिए जो है वो अलग-अलग होती है, उसको हम डिस्पोज कर देते हैं आफ्टर यूजिंग वन टाइम, ठीक है। और जो फिक्स प्रोब होता है उसको जो है हम उस वक्त तक चेंज नहीं करते जब तक कि वो डैमेज नहीं हो जाती या जो है वो फिक्स नंबर ऑफ जो सैम्पल साइकिल्स हैं वो पूरे नहीं हो जाते। अगर एक जो है सैम्पल प्रोब को हम यूज़ करके अगर 100 टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं तो 100 के बाद भी अगर वो चल रही है तो वो चलती रहेगी जब तक कि वो क्रैश वगैरह नहीं होती वो या वो डैमेज नहीं होती, तब तक जो है वो फिक्स प्रोब को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है वो सैम्पल में जो है वो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, ठीक है। स्पेसिमेन प्रोब्स इनकॉर्पोरेट अ नंबर ऑफ डिज़ाइन फीचर्स टू आइडेंटिफाई सैम्पलिंग प्रॉब्लम सच एज, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो है वो सैम्पलिंग में आ सकती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से जो है वो हमारा सैम्पल ख़राब हो सकता है। सबसे पहले है कि लिक्विड लेवल सेंसर जो है वो ख़राब हो गया, उन्होंने सेंस नहीं किया लिक्विड लेवल कितना है, ठीक है। उसके बाद प्रोब क्रैश डिटेक्टर्स होते हैं और क्लॉट डिटेक्टर्स, ठीक है। क्लॉट डिटेक्टर्स होते हैं कि कोई क्लॉट हुआ तो वो बता देंगे, ठीक है। प्रोब क्रैश डिटेक्टर्स में ये होता है कि अगर कोई हमारा प्रोब फिक्स प्रोब था वो अगर डैमेज हो गया या क्रैश हो गया तो वो उसको शो कर देते हैं और जो है वो सैम्पल में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसके बाद कैरी ओवर आता है। कैरी ओवर जो है ये सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम होती है जो कि किसी भी प्रोब के ज़रिए एक सैम्पल से दूसरे सैम्पल में जो है वो कन्वर्ट होती है, ठीक है, ट्रांसफर होती है। उसकी वजह इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मिनिमाइज़ करने के लिए जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल सर्फेसिस ऑफ प्रोब्स को जो है हमें वो फ्लश करना चाहिए, वॉश करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ डीआयोनाइज्ड वाटर और द वाटर सोल्यूशन ड्यूरिंग द सैम्पलिंग साइकिल, ठीक है। उसके बाद देखेंगे रिएक्शन वेसल्स, ठीक है। क्यूवेट्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो क्यूवेट्स दो तरह की होती हैं, एक डिस्पोजेबल होती हैं और एक रीयूजेबल वॉशेबल क्यूवेट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है डिस्पोजेबल क्यूवेट्स वो होती हैं जो कि प्लास्टिक या कंज्यूमेबल के से बनी होती हैं और जो है वो एक बार जो है हम उनको यूज़ करते हैं तो उसके बाद जो है उन्हें हमें डिस्पोज करना पड़ता है दोबारा, जो है वो उनकी मेंटेनेंस जो है वो प्रॉपर वे में नहीं रहती, इसलिए जो है उनको हम डिस्पोजेबल क्यूवेट्स बोलते हैं। और दीज आर यूज फॉर परफॉर्मिंग वन सैम्पल या वन टेस्ट। उसके बाद है रीयूजेबल क्यूवेट्स जो होती हैं ये एक प्योर रेंज ऑफ वॉशेबल मटेरियल से बनी होती हैं, जिस तरह के ग्लास हो जाता है, ग्लास सिलिका होता है, क्वार्ट्ज होता है या सम प्लास्टिक जो इम्पोर्टेंट टाइप का होता है उससे जो है ये बनी होती हैं और ये बार बार जो है हम इनको यूज़ कर सकते हैं वॉश करके या डीआयोनाइज करके। और जो है ये इन द फॉर्म ऑफ रिंग होती हैं, ठीक है। इनकी जो हमें स्ट्रक्चर नजर आती है वो रिंग के फॉर्म में होती हैं, ठीक है, रीयूजेबल क्यूवेट्स। उसके बाद आ जाता है कि एब्जॉर्बेंस मेजरमेंट। एब्जॉर्बेंस जो है एब्जॉर्बेंस एट नंबर ऑफ फिक्स्ड वेवलेंथ रेंजिंग फ्राम 340 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, ठीक है। वेवलेंथ्स कॉमनली यूज्ड इन द इम्यूनोकेमिस्ट्री एनालाइजर आर 405, 540 and 700 nanometer. Instrument may have anywhere between 8 and 20 wavelength settings, any of which can be assigned to a particular test. उसके बाद जो है वो आ जाता है कि कॉमनली 2 वेवलेंथ्स आर एम्प्लॉयड फॉर ईच टेस्ट, ठीक है। प्राइमरी वेवलेंथ एंड सेकेंडरी वेवलेंथ। प्राइमरी वेवलेंथ में ये होता है कि प्राइमरी वेवलेंथ्स उस टाइम यूज़ होती हैं जबकि हमें मेजर चेंज इन एब्जॉर्बेंस कर हो सकती है कोई, उस वक्त हम जो है वो प्राइमरी वेवलेंथ जो सेकेंडरी वेवलेंथ उस वक्त यूज़ करते हैं। यूज़ टू करेक्ट फॉर बैकग्राउंड के लिए एब्जॉर्बेंस एसोसिएटेड विद द
sample rather than the test reaction. So may minimize the effect of interfacing factors such as hemolysis. ठीक है, इन वेवलेंथ को यूज़ करके हम जो है वो इंटरफेरिंग फैक्टर्स जो होते हैं जैसा कि हीमोलाइसिस वगैरह उनको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आगे इसमें जो क्लोज सिस्टम होता है और ओपन सिस्टम होता है। ठीक है, क्लोज सिस्टम में ये होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं किसी भी ऑपरेटर को कि वो जो है वो सप्लायर्स की तरफ से जो प्री पैकेज रीजेंट्स आते हैं उन्हीं को जो है वो यूज़ करे और जो है वो एक्स्ट्रा जो है बाहर के इनकॉर्पोरेटेड मेथड जो है न्यू मेथड उनको अप्लाई ना करे। जस्ट के जो उसी का जो कोई भी सैंपल हमने लेना है वो जो सप्लायर की तरफ से जो बताया जाएगा या स्पेसिमिन वगैरह हैं या रीजेंट्स वगैरह हैं स्पेसिमिन की सप्लायर की तरफ से जो प्रोवाइड होंगे हम उन्हीं को लेके जो है परफॉर्म करेंगे। अदर जो है वो फ़ॉरन कोई भी जो है या आउट ऑफ दैट एनालाइज़र हम यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद आता है कि ओपन सिस्टम में जो है वो मोस्ट जनरल केमिस्ट्री एनालाइजर्स होते हैं ऐसे होते हैं जिनके ज़रिए जिनके लिए हम जो है वो कोई भी जो है वो रीजेंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं और उस पर जो है अप्लाई करके जो है वो टेस्ट रिज़ल्ट जो हैं वो हम परफॉर्म कर सकते हैं और उनके रिज़ल्ट जो हैं वो हमें हासिल हो सकते हैं। इसके लिए जो है वो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हम जो है उसके एनालाइज़र के अपने रीजेंट्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं या उसी की तरह के जो है किसी और कंपनी के रीजेंट्स अगर अवेलेबल हैं हम उनको भी यूज़ करके जो है टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं और जो है रिज़ल्ट गेन कर सकते हैं। और लास्ट पे आ जाता है कि डेटा आउटपुट में जो है वो यूजुअली जो है वो आउटपुट ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ये होता है कि रिज़ल्ट्स जो हैं वो क्लिनिकल टेस्ट के जो है वो रिज़ल्ट्स जो होते हैं वो स्पेसिमेन सैंपल के ऊपर ही जो है वो शो हो जाते हैं। ठीक है, जो ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या फिर जो है वो हम उनको जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में जो है वो हम डायरेक्ट जो है वो लेबॉर्ट्री इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत जो है वो डायरेक्ट जो है वो हम एनालाइज़र को जो है वो सेंड कर देते हैं या क्लिनिशियन को डायरेक्ट जो है वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसी के जो है वो कैबिन में सेंड कर देते हैं। ठीक है, लैब में टेस्ट परफॉर्म हुआ और उसका रिजल्ट जो है वो डायरेक्ट क्लिनिशियन के पास जो है विदाउट एनी पर्सनल असिस्टेंट यूज़ किए हम जो है वो सेंड कर देते हैं जिसमें जो है वो मिनिमल अमाउंट ऑफ पीपल्स यूज होते हैं। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक ऑटोमेशन एंड इट्स टाइप्स एंड केमिस्ट्री एनालाइजर एंड फर्दर मोर। आई होप you understand my this presentation. Allah Hafiz.